नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऑन्ड्रे है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। Hi, Andre. पहले तो मैं सबसे पहले ईश्वर की कृपा से और आप सभी भाइयों की सहायता से आज मैंने ना शराब पी है और ना आपकी पीने का कोई प्लान है। मैं सबसे पहले न्यूकमर सनराइज मीटिंग की जो चेयरपर्सन है सौरभ, प्रमीला मैम, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है। And by the way, this is my first speaker meeting. So if in case I go wrong anyway, please forgive me for that. I am not a regular speaker, but I will try my best to share my experience over the past 4 years that I have got from these rooms and which has helped me in my early recovery. Uh, so I started off like every other alcoholic in this room, but I was very grateful, and I am still grateful to my sponsor, Anthony, who is no longer with me today. And it completes 1 month today that he's, no more in this world. But he made all attempts and everything possible to help me in my initial stage of recovery. So I still remember when मैं रिहैब से निकला था, 3 महीने का रिहैब में था और मैं वहां से निकला. And I was told by my counselors होते वहां पे, and they told me, like, the real world is outside. Staying within four walls, you may be able to, uh, keep away from alcohol for as long as you are in the room, but the real world is outside, so you have to make it a point to continue meetings. आपको मीटिंग जाना ही है और वही एक सॉल्यूशन है आपका. तो मैं सेक्टर 16 जो मेरे घर के बहुत नजदीक है, मैं वहां पे गया. पहला दिन जब गया था तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पर तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है हु कैन एट दैट, जो मुझे वो चीज दे दैट आई एम कमिंग फॉर, बिकॉज आई हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि मैं जाऊंगा और एक चमत्कार हो जाएगा, एंड लाइक योर ओन परसेप्शंस इन योर माइंड. सीधा रिहैब से निकल के पहला मीटिंग तो माइंड ना एक स्टेबल जगह पे नहीं था, बहुत सारी क्वेश्चंस थे. And the moment the meeting started, after a few minutes, when this guy walked in, all suited, booted, and like his laptop bag and all that, and I looked at him. I said, "ये कहीं से तो मेरे को शराबी नहीं दिख रहा है." Anyways, after the meeting, they asked me that, why don't you meet Anthony on a one-on-one? Individually, मैं मिला. And the things he came up with, जो चीज उन्होंने बताया मुझे उस मीटिंग के बाद में, इट रियली मेड मी सरप्राइज एज टू, यार ये वाकई में, या तो मेरी, अच्छा, माय फर्स्ट डाउट वाज शायद मेरे भाई ने, बिकॉज माय ब्रदर वाज अ मेंबर, इज अ मेंबर इन ए बिफोर मी. तो मुझे लग रहा था कि मे बी इन लोग का ना ए ग्रुप वाले एक दूसरे को पहचानते होंगे. So he must have told my brother, must have told him about my habits and all that. So I was very doubtful about all that. But after I came to know that no, he is also an alcoholic, and when he shared his story with me about how he started and everything, then we became like uh, thick as thieves. हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी. एंड उनका एज डिफरेंस, मेरा एज डिफरेंस कुछ 40-45 साल का डिफरेंस था. बट उन्होंने वो चीज मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि हमारे बीच में कोई डिफरेंस है. And I was told in the rehab, like, first 5 years, initial 5 years of your recovery, do not make any major changes in life, only focus on your recovery. And I was very, like, staying in a place like Delhi, you have to have a job. And I was very worried about it कि sir मैं job कर पाऊंगा कि नहीं. And he said, yes, definitely. He said, you have to work. Without you working, you will not be able to manage. I said, but how will I take up this job? I said. So he said, no. He said, you just go. And he tried reaching out to members in Noida. That was my first job when I started working after I came back from the center. And from Dwarka, I used to travel to Noida every day. And there were few things which, it started off as ground level, and few things which I make it a point today also. I wake up in the morning, irrespective of whatever time I wake up, I make it a point.
to stand in front of God and ask Him, like, thank you for letting me have a wonderful sleep in the night. And I'm offering up my entire day to you. Please keep me away from the first fatal drink today. That's how I start my day, even today, after being 3.5, 4 years into recovery. And in the night before I go to sleep, as soon as I lay down on my bed, I just make the sign of the cross and tell Him, thank you, Lord, for keeping me, my family, away from all the problems of the world and keeping me safe from the first fatal drink today. That's one thing which, which initially in the first few days of my meeting, which he taught me. And I started realizing the value of this. There are people, in fact, Anthony himself, 12th night he slept off and he did not wake up on the 13th morning. And I am so grateful to God that, I get an opportunity to wake up every morning. I wake up, I see my family around me, I see my loved ones around me. I'm so happy. So I am the firstly I started off with that, and then when I started working with in Noida, Anthony introduced me to a few members in the Noida group, and he made it a point to tell me, as and when. Of course, I used to have initially I had a lot of uh, you know uh, set, fears in me about relapsing. Oh, I had a lot of things playing in my mind that what I'll do in case if I ever uh, I used to have the urge also of drinking. And one day it happened, like, I was working with Amity University in Noida, and one evening we went out after work for a get together, and literally that beer bottle came to my in front of me, and I picked it up and I just thought, what am I doing? I put it down from wherever I picked it up. I walked out. I would not want to mention that member's name. There's a female member in Noida group. I called her up. I said, this is what has happened, but I did not put it to my mouth. And they made arrangements from sector 125 to, make me leave via the first metro from Golf Course Road, or I'm not sure about the metro, but I managed to leave from there. And initially it was very difficult. I used to, like, situations आएंगे, ऐसा नहीं है, recovery is like a bed of roses. So, and Anthony always kept telling me this, that don't think it's going to be a bed of roses. You will have your own ups and downs, you will have your own issues, your own problems, but come what may, keep away from the first drink. If you are doing that, you're a winner. But if you don't, you lose everything what you have. And that kept playing in my mind. I went back the next day. I took an off. I went for a morning meeting in Dwarka. I called up Anthony. I told him, I said so and so happened. He took the day off from work, and just behind our meeting place there's a small chai ki tapari. I met him over there and I was trembling with fear. I was just trembling, like, what if I had to actually have that beer? There was no stopping after that. And it, ये एक ये एक फैक्ट है कि अगर हमने शराब पी ली है तो उसके बाद रुकना तो हमें अगर शायद आता, तो हम शायद इन कमरों में नहीं आते. मुझे याद है, मैं कभी एक क्वार्टर से ना संतुष्ट नहीं होता था. खरीदता मैं एक क्वार्टर ही था, ये सोच के कि विथ ऑल गुड इंटेंशन आई विल ओनली हैव वन क्वार्टर टुडे. And there were times I used to end up with more than 5 or 6 quarters. And I've even missed, मेरा जिस दिन इंटरव्यू था, before I came into recovery, I was working with one of the companies in Gurgaon, and मैं मेरा मैनेजर, मेरा सीनियर मैनेजर ने मुझे बोला कि कल रात को, यानी कल के शिफ्ट में जब हम आएंगे, it's my interview for my promotion. I went home all excited, and I made up my mind that no, I will not drink. But वो excitement में नींद नहीं आ रही थी.
और जब नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार एक क्वार्टर पीने से ना नींद तो आ जाएगी, एंड कम से कम रखता हूँ, एक क्वार्टर ही पीऊंगा। एक क्वार्टर के बाद फिर दूसरा क्वार्टर का फिर मुझे मन किया, मैंने कहा एक क्वार्टर और पी लेता हूँ, वो तो नॉर्मली है मेरा। दूसरा क्वार्टर पी के आराम से सो जाऊंगा, और शाम को उठ के नहा धो के फ्रेश होके ऑफिस। दूसरा क्वार्टर के बाद में कंट्रोल नहीं रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा के बाद ब्लैकआउट, सीधा ब्लैकआउट। मुझे याद नहीं मैं कब उठा, और जब उठ के देखा, माई टाइम फॉर माई इंटरव्यू, माई कैब, ऑफिस कैब, सब मिस हो गया था। And so much so, because of alcohol, just because of alcohol, I was asked to leave from 5 multinational companies, starting from 2013 right till 2017। 5 मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे बोला गया आप कंपनी के लिए फिट नहीं हो। और हर जॉब का छूटने का वजह मेरा कैपेबिलिटी नहीं था। यहां तक कि मेरी सीनियर मैनेजर ने मुझे कहा था कि ऑनरे जिस दिन ऑफिस आ जाता है, ही इज अ स्टार, पर बशर्ते ऑनरे ऑफिस आ जाए, और मुझसे वही नहीं होता था। अगर 22 दिन वर्किंग होते थे महीने में, तो मैं मुश्किल से 15 या 18 दिन जा पाता था। तो I did not understand the trend or the kind of problem alcohol is causing me at that time. But when I came into recovery, when I started following the pattern that I used to in my old days, I was told that you have to do something different. और एक चीज एक होता है, बाकियों का नहीं पता, पर मुझ में ना बड़ी चुल थी। मैं बड़ा ज्ञान बांटने निकल गया था कि सबको बताता था ए के बारे में, ऐसा है वैसा है। और एक दिन पता नहीं, मेरी होने वाली जो मंगेतर थी, उसका भाई को मैंने बताया, मैंने कहा यार तू इतनी शराब पीता है ना, तू एक ही मीटिंग चला कर, ऐसा होता है वैसा होता है। तो जब शाम को वो मेरे साथ आया, तो ही ऑब्वियसली, जो बंदे को अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पॉजिटिव माइंड लेके नहीं आएगा। और कोइंसिडेंटली एंथनी से हम पहले मिल रहे थे मीटिंग में, चाय की टपरी पे। तो जब एंथनी से मिला, एंथनी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये है। और ही वो कुछ मिनट की बातों में ना वो समझ गए थे कि यार ये बंदा अल्कोहलिक नहीं है, इसको तो जबरदस्ती खींच के लाया गया। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि यार सी, you have to be selfish for your recovery. You cannot go giving gyan to everyone. You find an opportunity, you get an opportunity, you definitely do service over there, but not at early recovery. तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, काफी मुझे ना अपना ऑफिस आवर्स के बाद काफी टाइम मिल जाता था मुझे। तो एंथनी के कहने पे मुझे ग्रुप में चेयरपर्सन का वो मिल गया था, सर्विस मिल गया था। आई डिड अ लॉट ऑफ सर्विस। उसके बाद मैं संडे को फ्री रहता था, तो संडे को हम बेस हॉस्पिटल जाते थे मीटिंग में, साइकेट्रिक वार्ड है वहां पे। एंड जो पॉसिबल सर्विस मिला मुझे, चाहे वो सेक्रेटरी का हो, चाहे वो चाय बांटने का हो, चाहे वो मीटिंग सेट करने का हो, विदाउट एनी हेजिटेंस मैंने वो लिया और बखूब निभाया मैंने। बिकॉज आई न्यू दैट मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इन कमरों में एट अर्ली स्टेज इज नॉट बिकॉज वहां पर काफी पुराने मेंबर थे, एंड टू लर्न आई हैड टू स्टिक अलोंग विद देम। एक हमारे ए में स्लोगन भी है ना, स्टिक टू द विनर्स। तो फॉर मी विनर्स वे एंथनी, ही वाज वन रोल मॉडल इन ए फॉर मी, एंड व्हाटएवर ही टोल्ड मी, मैंने कभी उनकी बात पे आई डिड नॉट एवर क्वेश्चन हिम ऑन दैट। इनफैक्ट अर्ली रिकवरी की एक और बात बताना चाहूंगा कि आपको भूख बहुत लगेगा, आप द थिंग्स व्हाट जो आपने यूजिंग टाइम में नहीं किया है, आपको जस्ट ऑपोजिट करना है। मुझे नहीं पता था, मुझे मीठे का क्रेविंग होता था। और एंथनी मुझसे पूछते थे कि एनी एनी चेंज इन योर लाइफस्टाइल,
एनी चेंज इन योर ईटिंग हैबिट्स? तो मैं नॉर्मली बताता था कि नहीं, मैं खाना तो ठीक ठाक खा लेता हूँ, ट्राई नॉट टू स्टे एम्प्टी स्टमक, बीच में बिस्किट विस्किट कुछ भी खा लेता हूँ, कैंटीन में कुछ भी मिल जाता है वो खा लेता हूँ। बट एक दिन जब उन्होंने मुझे देखा, मैंने एक पाव अग्रवाल के यहाँ से एक पाव मैंने जलेबी खा रहा था, और वो मेरे को बोले कि यू नो दिस इज द चेंज आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, because when you give up something which you are not in regular to, you start having that tendency of taking up something else. So I started having a lot of मीठा मीठा मैं ऐसा खाता था जैसे उसका कोई हिसाब नहीं होता था, और एक एक पाव जलेबी, इट वाज लाइक बहुत होता था. बट all I would want to tell the newcomers is, do not miss a meeting. मुझे याद है जब मैं एमिटी में था एंड आई वाज स्विच टू अ डिफरेंट शिफ्ट, तो मैं एमिटी से निकलता था 6:30 बजे, और मुझे 7, 7:30, पौने 8 बजे मैं द्वारका पहुंचता था, और मैं भागते हुए मेट्रो से, सेक्टर 14 की मेट्रो से डिस्पेंसरी तक जाता था जहां पे मीटिंग होती थी, और सिर्फ लास्ट का प्रेयर. सो बिफोर द पैंडेमिक, अगर आप लोग की ग्रुप में होता है कि नहीं पता नहीं, बट पैंडेमिक से पहले हम हाथ पकड़ के प्रेयर करते थे. एंड मैं चाहे जहां से भी दौड़ के आऊं, मैं ये देखता था कि एंथनी कहाँ खड़ा है, उनका हाथ पकड़ के मैं प्रेयर, और लास्ट का प्रेयर ही मेरा मीटिंग होता था. वो लास्ट का 2 मिनट का जो प्रेयर बोलते हैं हम, सेरेनिटी प्रेयर, दैट वाज माय एंटायर 1.5 hour मीटिंग. एंड एंथनी यूज्ड टू encourage मी, congratulations, you made it today, you got a meeting. और अगर जिस दिन शेयरिंग मिल गया तो उस पे तो सोने पे सुहागा हो जाता था. बट वो मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 4 या 5 महीने मैंने सिर्फ लास्ट का प्रेयर हाथ पकड़ के मीटिंग, वो मेरे लिए मीटिंग हुआ करता था, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. और संडे को बेस हॉस्पिटल की मीटिंग, जहां सिर्फ एंथनी और मैं और बाकी जो साइकेट्रिक वार्ड के पेशेंट्स होते थे, आर्मी वाले. बट दैट लेटर ऑन, और मैं जहां पर भी वो बोलते थे ऑनरे आज इनकी सेलिब्रेशन है, ऑनरे उनकी सेलिब्रेशन है. अभी जब मैं मीटिंग ज्वाइन किया था तो मैंने एक मेंबर को देखा यहाँ पर, एंड आई रिमेम्बर आई हैड गॉन टू वन ऑफ द ओल्ड मेंबर्स, सुरेश जी की 25th एनिवर्सरी पे मैं गया था, बर्थडे पे, और वहां पर मैंने इन लोगों को देखा. मींस द काइंड ऑफ पीपल गैदर्ड ओवर दे, एक पूरा क्लासरूम भरा हुआ, 25 साल का मेडल, और पहला बार में एक मेडल जो यूएसए से 2 या 3 मेडल घूम रहे थे, और मेरे को तो मिली, हम तो बस ढूंढ रहे थे कौन सा मेडल आएगा, कौन सा मेडल आएगा. सो दैट क्रेज दैट पीपल हैड, दैट मेड मी वेरी enthusiastic टूवर्ड्स इट, कि यार यहाँ भी ये भी होता है. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, स्पेशली माय फैमिली, बिकॉज हम पीते समय ना ये नहीं सोचते कि हमने उनको मेंटली क्या टॉर्चर दिया है, क्या स्ट्रेस दिया है. एंड व्हेन आई केम इनटू रिकवरी, द फर्स्ट ईयर मेडल मैंने अपनी मम्मी से लिया था. मम्मा को मैंने दिल्ली बुलाया था, और पहला साल का मेडल जब उनको बुलाया गया था कि आपका बेटा पहला मेडल, पहला साल का मेडल आपसे लेना चाहता है, इट वाज अ साइट टू सी. माई मम्मी के आंख में आंसू, मम्मी रो रहे हैं, और मुझे जोर से पकड़ के उन्होंने जब मेडल दिया, मैं अभी बात कर रहा हूँ और मुझे गूज बम्स हो रहे हैं वो मोमेंट सोच के. बट मैं जब फ्लैशबैक में जाता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे यूजिंग टाइम में उनको क्या मेंटल स्ट्रेस दिया मैंने, मैं उसका रिकवरी नहीं कर पाऊंगा, उसका मैं कभी उसके बदले में उनको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा compared to that. But the happiness that she has today, seeing me in my recovery, seeing me making all possible ways to do things that are supposed to be done, I know that she is mentally happy, she is at peace when she looks at me. आज उनको ना वो फियर नहीं होता है कि मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, 11 बज गया है, वो वापस आएगा सही सलामत होगा कि नहीं. क्योंकि शुरुआती में मुझे याद है जब मैं
नोएडा गुड़गांव में रहता था एंड आई टू यूजिंग में था। मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी और मैं स्कूटी से हाईवे पे एक 16 चक्का के साथ में रेसिंग करता था 4-5 क्वार्टर पीने के बाद। और अब सोचता हूं मैं कि क्या पागलपन था यार वो। अगर हल्का सा मैं मेरा हाथ किसी भी ब्रेकर पे या किसी भी गड्ढे पे हल्का सा भी मुड़ता तो मेरे ऊपर कितनी 16 चक्के निकल गई होती। मेरी बॉडी को लिटरली खरोद के निकालना पड़ता रोड से। वो सब चीजें ना अब जाके याद आता है। या आई थिंक अबाउट इट टुडे आल्सो एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट। मैं जहां पर भी मीटिंग में जाता हूँ एंड इफ देयर इज अ न्यू कमर, क्योंकि न्यू कमर्स को पहले ना बहुत कुछ बताया जाता है कि मीटिंग में आपको ये करना है वो करना है। बट द वे आई वाज हैंडल्ड इन AA, I was given that freedom by Anthony. The only thing he told me was, "You continue to the meeting." He didn't tell me about program. He didn't tell me about steps. He didn't tell me about sponsor. Nothing. Nothing. I completed my 6 months when I got my first 6 months medal, and then I asked him on the way to the metro. मैं द्वारका उतरता था, वो उत्तम नगर उतरते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये स्पॉन्सर क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पर तो सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं है। बोले तू ये सब के बारे में मत सोच, तू सिर्फ मीटिंग आए कर। मैंने कहा पर अभी उन लोग बोल रहे थे ना आपको बैठ के कुछ लिखना है, आपने जिसके जिसके साथ क्या क्या किया। मैंने कहा यार मैं तो आई स्टे विथ माय रिलेटिव्स। मैं अगर वहां लिख लिया और बिकॉज मैंने कोई अच्छे काम थोड़ी ना किए। अगर मैं लिखने लग गया और वो हाथ अगर वो किसी के हाथ में आ गया तो that itself will take me somewhere else. That fear. He said, you don't think about all that at all. You just focus on coming to meetings. That's it. Everything else will be done. And शुरू के दिन में when there are less members in the meeting, आपको मौका मिलता है शेयरिंग करने का। You may not have a lot of बोलने के लिए आपके पास ना बहुत कुछ ना भी हो। Whatever you feel, आपको जो लगता है अपने बारे में, आप कैसे महसूस करते हो, आप वो बोलो। अच्छा हो बुरा हो, मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैं उस उनकी तरह शेयरिंग करना चाहता हूँ। आप किसी की तरह शेयरिंग नहीं कर पाओगे। आप अपनी आप बीती बताने आए हो और उनकी आप बीती जानने आए हो। तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि दे ट्राई टू इम्पोज पीपल, यू नो वाई दे शेयरिंग्स। बहुत लोग सोच के आते कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा। बट द ऑनेस्ट फैक्ट इज दैट जब हम प्रेयर करते हैं बिफोर द मीटिंग, that itself calls on to the presence of a higher power, and that's when the higher power takes over the meeting. तो मैंने बहुत बार कोशिश किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप कभी कोशिश करना सोचने का कि मैं मीटिंग में आज ये शेयर करूंगा। आप एग्जैक्टली वही शेयर नहीं कर पाओगे, बाकी सारा कुछ शेयर कर पाओगे। बिकॉज इट्स नॉट यू हु इज स्पीकिंग, it is the higher power who wants you to say those things, and that's why you come up with those things. मेरे में एक प्रॉब्लम था। मैं हकलाता था पहले एंड I did not have this confidence of speaking on an open platform before. This was identified by Anthony and he made it a point to take me to these base hospital meetings. वहां पर मैं ये कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। बिकॉज एक अल्कोहलिक क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था कि एक क्वार्टर पीने के बाद आप मुझसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करने को बोल दो, मैं कर लूंगा। दैट कॉन्फिडेंस लेवल। बट इफ आई एम नॉट हैड अ ड्रिंक, अगर मैंने शराब नहीं पी है तो मैं शायद अपने किसी जान पहचान वाले से भी बात करने में झिकझिकाऊंगा। तो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट एंड उसके वजह से मैं काफी लोगों से बात करना ना, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं बात क्या करूं। बिकॉज मेरे जो दोस्त होते थे, मेरे जो जिनसे मैं हंसी मजाक करता था, वी ऑलवेज स्पोक अबाउट अल्कोहल।
Andre, there is some network issue. Andre, आपकी आवाज नहीं आ रही. Mixed with people who are not like alcoholics, or who do not drink on a regular basis, who do not drink at all. Then I started mixing with these people. I started observing, and it is एक ना बच्चे की लाइफस्टाइल जैसा, एक लाइफ सर्कल जैसा होता है. आप देखते जाओ, आप सीखते जाओगे. बट द की टू the lifestyle or early recovery, there's only two things that comes to my mind. What helped me was meeting every day. And if given, अगर मौका मिला आपको कोई भी सर्विस करने का, ले लो. That is the golden opportunity. मुझे excuse me, मुझे opportunities बहुत मिला सर्विस का. I took up everything that came my way for service. And regular meetings, I started making it a point कि मैं morning meeting भी attend करूं, because there is a saying, more meetings, more sobriety. So I started making it a habit of attending 2 meetings in a day. सुबह का मीटिंग 6:30 बजे होता था, वो अटेंड कर लेता था. उसमें हालांकि 2-3 मेंबर ही होते थे, तो होप एंड स्ट्रेंथ देने के लिए आई यूज्ड टू गो अवे अर्ली इन द मॉर्निंग. और एक हमारी शाम वाली मीटिंग, जहाँ पर सारे आते थे. अच्छा, और एक चीज जो मैं एक पुराने मेंबर से, कैलकाटा के पुराने मेंबर से मिला था, जो मेरे भाई के स्पॉन्सर हुआ करते थे. एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी. हम बैठ के किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, कोई कंफ्यूजन हुआ था हमारे सेक्टर 16 वाले ग्रुप में, और उसके कुछ दिनों बाद मैं कलकत्ता गया हुआ था छुट्टियों पे. तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑन्ड्रे, ये मत सोचना कि ए में सारे संत आते हैं. बोले, देयर आर नो सेंट्स इन अल्कोहलिक एनोनिमस, दे आर ऑल अल्कोहलिक्स. तो चाहे वो 5 साल का भी रिकवरी हो, चाहे वो 15 साल का भी रिकवरी हो, ही इज नॉट अ सेंट. एंड डू नॉट ट्राई टू, आप उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो. उसमें ये होगा कि आप अपने आप को भी भूल जाओगे, और जो आप जिसको कॉपी करे थे वो तो गए गए. All right. So that was one of the things that I started learning over the period of time, because क्रॉस शेयरिंग होना शुरू हो गया था वहां पर. अब क्रॉस शेयरिंग मुझे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है. मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे उस चीज पे कोई काउंटर कर रहा है. तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड एक बंदा है जिसका नाम नहीं लूंगा, बट ही मेड इट अ पॉइंट. बट दीज थिंग्स, ये ना बहुत काम आता है, ये आपकी रिकवरी स्ट्रॉन्ग करती है, अगर आप उसको पर्सनल लेवल पे ना लो तो ये बंदा काफी क्रॉस शेयरिंग करता था. और मैं रोज मीटिंग के बाद एंथनी को बोलता था, आज मजा नहीं आया मीटिंग में, आज मजा नहीं आया. और एंथनी बोलता था, कोई बात नहीं, घर जा, रोटी खा, प्रे करके सो जा. मैंने कहा ठीक है. फिर भी रात को नींद तो आती नहीं थी. दिमाग में ये चलता था कि यार बंदे ने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया, ऐसा क्यों बोल रहा था वो. बट कुछ समय बाद जब एंथनी और मैं हम मिले और बातचीत होने लगी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिकवरी, this is what is going to help you, because there are not everyone who will talk good about you or about AA or about recovery. There will be people who will talk about the goods of alcohol. और आते हैं, लोग आते हैं कुछ समय की रिकवरी के बाद. बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो दे टॉक गुड अबाउट अल्कोहल. होगा जिसके लिए है, उसके लिए वो अच्छी चीज है. मेरे लिए अच्छी चीज नहीं थी, सो आई डिड नॉट हैव दैट acceptance towards it. And I think that's more about my story and lifestyle in early recovery. And once again, I'm thankful to the members of Newcomer Sunrise meeting.
especially to Saurabh and to Pramila ma'am, because you are the only two I know. So thank you for giving me this opportunity. Thank you so much.